ओके, सो 14th क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन्ड फॉर कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। मतलब ये देखो, ये इस टाइप का ट्रैक है। यस, तो ट्रैक इज लाइक दिस and its radius of curvature is going to be 72 मीटर। ओके, 72 मीटर ये उसका रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि we are not recommending the vehicles to drive faster than 216 kilometer per hour. That means the maximum speed, ठीक है, with which the vehicle can travel along the road is going to be 216 kilometer per hour. Okay, this is the maximum speed that is to be recommended. With what angle should it be road be tilted? तो हमको यहाँ पे थीटा निकाल के दिखाना है। थीटा is to be found out, and at the same time by what height the road outer edge be tilted. तो मतलब ये जो रोड सरफेस है, तो इस रोड सरफेस का आउटर एज कितने एंगल से टिल्ट करना होगा ताकि उतना एंगल बन जाए। तो मतलब हमको हाइट भी निकालना है, हाइट up to which the road is to be, outer edge must be lifted up so that the road will get tilted in this way. Okay, तो ये हमको ढूंढ के निकालना है। और width of the road is already given। अगर ये डायग्राम हमने बड़ा करके देखा तो हमको इस तरह से दिखेगा कुछ। So this is the horizontal and this is the surface of the road which is already 10 meter wide. Okay, this is 10 meter here, and also the angle theta and this height is to be found out here. Okay, ये height जो है वो हमको ढूंढ के निकालना है। How much it must be, we have to find out. Okay, and the length of this road, मतलब width of the road is already given to be 10 meter. Yes, and maximum speed is also given and radius is also given. Yes. Okay, so have you understood the question? So I will just stop the sharing so that the board will be more wide. Yes, so we can just see here that the velocity, maximum velocity यहाँ पे हमारे पास है, थीटा हमको निकालना है, रेडियस हमारे पास है। Simply we have to find out the formula, use the formula that is v tan theta is equal to v square upon rg. That's it, v square upon rg। तो ये जो tan theta है ये हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है v square upon rg। Okay, this is to be used in this case. So if we just put these values here, but before that we have to convert this velocity into meter per second. It's already in kilometer per hour, so we should know how to convert the velocity from kilometer per hour into meter per second, because we know that 1 kilometer is going to be 1000 meter, correct hai? It's 1000 meter, and also this hour means 1 hour is going to be 3600 seconds, and then we can just get this as 216 into 1000 upon 3600, दो 00 कैंसिल हो जाएंगे और 5/18 हमको मिल जाएगा। 5/18, वैसे भी ये 5/18 याद रख लो, ठीक है। Always remember that we have to multiply this, yes, 60 meter per second. So if we just multiply, divide this 18 and 216, तो इसको अगर 9 से अगर रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा 9 2 जा, and here it is 9 2 जा 18 and 36 बचा 9 4 जा, करेक्ट है। So 2 1 जा 2 12 जा, so 12 5 जा 60, so here it is going to be 60 meter per second. This is actually going to be the velocity which you have already found out in meter per second. Yes, चलो ठीक है। So you have get the velocity. अभी ये वेलोसिटी यहाँ पे हमको डालना है, तो v स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 60 into 60, करेक्ट है, दैट इज v स्क्वायर। एंड रेडियस कितना है देखो 72 ऑलरेडी दिया हुआ है, और g का वैल्यू हमको पता है 9.8 हुआ करता है। अभी इसमें अगर हम रिड्यूस करेंगे तो देखो 6 10 जा 60 एंड 12 6 जा 60, और उससे भी आगे जाके ये 12 जो है 12 1 जा एंड 12 5 जा, करेक्ट है। So finally we can get this tan theta to be simply equal to 50 upon 9.8, which can almost be taken as 10. Okay, तो इस 9.8 को अगर हम 10 ले लेते हैं, ऑलरेडी मुझे लगता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g is to be taken as 10 करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो फिर भी उनका tan इनवर्स जो है वो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब they have already taken the value of g to be 10. Okay, so that's why they are getting the answer tan inverse of 5. Okay, so we can just approximately take this g as 10,
and then we can just find it out. So 10 अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा इज इक्वल टू 5 मिलेगा. एंड tan थीटा इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है? थीटा मस्ट बी एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 5. एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 5? वी शुड नो इट बाय द लॉग टेबल्स. तो ये हमको लॉग टेबल से निकालना होगा. ओके, लॉग टेबल यूज करके हमको ये tan इनवर्स 5 का वैल्यू आराम से मिल जाएगा. ठीक है, so if you have the log table, just find out the tan inverse of 5 from that. So मतलब हमको नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में बीच में हमको 5 ढूंढना है, 5.0000 ढूंढना है. ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 70 या 75 के आसपास वो एंगल आ जाएगा. लेट अस चेक. If you have the log table, just find it out and put it in the chat box. Yes, 78.69 degree. Yes, just check it out. Theta is going to be actually 78 point degree and 69. अच्छा, डायरेक्ट डेसिमल में निकाला. ठीक है, 78.69 डिग्री, ऐसा भी हम बोल सकते हैं उसको. Just let us check. तो फोन नहीं आ रहा ना? तिथं रोहित म्हणून आहे का बघा बरं मुलगा. Okay, yes, so we have the log table here. You can just see natural tangents. तो natural tangents के टेबल में 5 हमको ढूंढना है. It comes out to be under, yes, it is there 5.0045. It is there in 78 degree and 0.6. अच्छा नहीं, वो एक्चुअली आपने गलत किया. एक्चुअली वो 0.69 वैसा नहीं निकाला जाता है, याद रखो ठीक से. ठीक है, देखो अगर वो ऐसा है कि हमको 78 के सामने 78 के सामने हमको यहाँ पे 36 मिनट्स के नीचे ये मिल रहा है, बराबर है. 36 मिनट्स. ओके, 36 मिनट्स के नीचे यहाँ पे हमको मिल रहा है 36 मिनट्स के नहीं, 30 मिनट्स के नीचे मिल रहा है. ओके, 30 मिनट्स कितना मिल रहा है हमको? वो 4.9594 ये मिल रहा है. ओके, अभी इसमें हमको ऐड करने के लिए 6 चाहिए मीन डिफरेंस में. तो उसी लाइन में देखो, चेक करो मीन डिफरेंस में 6 है क्या? उसका तो मीन डिफरेंस ही नहीं है. ठीक है, ओके, सो वी कैन जस्ट कंसिडर द क्लोजेस्ट आंसर. क्लोजेस्ट वाला आंसर हम कंसिडर करेंगे तो 78.6 डिग्री, 69 नहीं. ओके, 78.6 डिग्री. या अगर रेडियन मिनट्स में चाहिए तो थीटा कैन बी कंसिडर एज 78 डिग्री एंड 36 मिनट अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो या तो 78.6 डिग्री या तो 78 डिग्री एंड 36 मिनट्स एक्स्ट्रा, ये हम एंगल कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी इतना एंगल बनाने के लिए इस आउटर एज को कितना लिफ्ट करना पड़ेगा, वो कैसे हम ढूंढ के निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज 3 क्वांटिटीज? इज साइन थीटा. वी नो दैट साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू opposite side h upon the hypotenuse, that is L. So we can just get this h to be simply equal to L into sin theta. Agree with this? So therefore we can just get this height to which the outer edge has to be lifted up is actually 10 times of this sin theta, where theta is actually this 78 degree and 36 minutes. Okay, so now we have to find it out. So 10 multiplied by, what is this sin 78 degree and 36 minutes? Let us try to find it out again by log tables only. तो log tables में natural sin का जो टेबल है उसके अंदर 78 के सीधा सामने,
ठीक है, 36 के नीचे देखो कितना है, 0.9803 है, करेक्ट है, इट इज 0.9803, check. So 0.9803. So if we just put it here and if we multiply this by 10, then decimal point will be just be shifted and get it as 9.803 meter. Okay, so that means if suppose the road is 10 meter wide, then we'll have to lift the outer edge by the distance of 9.803 meter, so as to get that particular angle of 78 degree, which is sufficient for this speed, 216 kilometer per hour speed. Okay, yes. Okay, so approximately it is 9.8 meter. Okay, just take the screenshot of this first, and if you have not understood any step, just put it in the chat box or just unmute yourself and ask it to me. I will here to explain. Okay. So, bolo. I didn't get how you have removed tan inverse of 5. Tan inverse of 5. Do you have log table? Yes, sir. Open natural tangents table in that. Natural tangents. Open, sir. Okay, तो उसमें देखो 5.00 हमको ढूंढ के निकालना है. ओके, 5.00. तो उसके लिए अगर देखते जाओ ठीक से, तो 45 के सामने 1 पॉइंट दिख रहा है, 45 डिग्री के सामने 1.0000 है कि नहीं? Yes. ओके, उसके बाद 2 कहाँ पे आ जाता है, देख चेक करो. 2 64 के सामने आता है, देखो 64 के सामने 2 पॉइंट, मुझे लगता है वो 0503 है, चेक करो एक बार. Yes, sir. ओके, अभी हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए हम, तो हमको 5 तक जाना पड़ेगा. तो और आगे जाओ तो देखो 3 कहाँ पे क्रॉस करता है वो, तो देखो 72 पे वो क्रॉस कर रहा है 3 को, करेक्ट है. फिर आगे Yes. जाके 4 कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 76. यस, और उसके आगे जाके 78, तो वो 4 पॉइंट ही है. और उसी लाइन में अगर देखो ना 78 के लाइन में, तो 5.00545 कहाँ पे मिला फर्स्ट टाइम? Sir, at 78, there is 7.407046. हाँ 4.70. और उसी लाइन में आगे बढ़ो, तो यहाँ पे 2 नंबर से देखो, एक है 36 मिनट्स, ठीक है. 36 मिनट्स के नीचे देख रहे हो कितना है, 78 के सामने 9594. हाँ 9594 ये है यहाँ पे. सो वी कैन जस्ट सिलेक्ट दिस वैल्यू एज अ फाइनल, क्योंकि यहाँ पे 4.9594 है ना ये. Yes. हाँ, तो अभी इसमें अगर हम सपोज कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, जो 5.0000 बन जाए. 95 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 499 ना, नहीं, इसमें 400 306 ऐड करना पड़ेगा, चेक करो 306. ओके, हाँ, तो यहाँ से तो हमको वैसे दूर पड़ रहा है वो बहुत, है कि नहीं? उससे तो Yes. नजदीक वो अगला वाला डिजिट है. उसके आगे आगे क्या है देखो, 5.0045 है, करेक्ट. 5.0045. दिस इज मोर बेटर. ये मैंने ये समझा कि 9994 रहेगा, बट वो 9994 नहीं है, वो 9594 है. उसमें तो 306 ऐड करना पड़ेगा उसको 5.00 बनाने के लिए, तो उससे तो ये वाला अच्छा है. तो इसलिए हमको उसको 42 मिनट्स लेना होगा एक्चुअली. ठीक है, 42 मिनट्स, नॉट दिस 36 मिनट्स, एक्चुअली इट शुड बी 42 मिनट्स. ओके, और अगर डेसिमल में चाहिए तो 0.7, 78.7, ऐसा हमको करना पड़ेगा. हाँ, और ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज होगा वो, इसकी वजह से 78 डिग्री एंड 42 मिनट्स यहाँ पे आएगा. तो अकॉर्डिंगली साइन ऑफ दैट 78 degree and 42 minutes will also change.
will actually be 78 और 42, तो मतलब वो हाँ 0.9806 आएगा। इट्स ओके, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें, ठीक है। वो वैसे भी हम उसको 9.8 के साथ ही अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। यस यस यस, चलो ठीक है। एनी मोर डाउट? नो सर। बाकी सबको समझा ठीक से? ओके yes, let us go to the next question now. Let us see the screen. yes, स्क्रीन पे कुछ पैचेस वगैरह तो नहीं दिख रहे ना? नो सर। नो सर। ओके ओके ठीक है। चलो अभी 15th क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से। द रोड इन द क्वेश्चन 14, अच्छा ये भी 14 के ऊपर ही डिपेंड है। देखो 14 above is constructed as per the requirements, okay, and coefficient of static friction between the types of tires of vehicle on this road is 0.8. will there be any lower speed limit, and by how much can the upper speed limit exceed in this case? okay, तो अभी देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हमको और एक बात करनी है कि फ्रिक्शन भी कंसिडर करना है। अभी देखो अगर फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमको, हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर हम फ्रिक्शन भी कंसिडर करते हैं और बैंकिंग जो है तो बैंकिंग का इफेक्ट भी कंसिडर करते हैं। तो ये सब चीजें याद रखो ठीक से। तो अभी हमको अपर स्पीड लिमिट निकालना है फॉर द सेम रोड। ओके, अभी इस रोड के लिए याद रखो उसका एंगल कितना है, tan इनवर्स ऑफ 5, इतना याद रख लो उसको, tan इनवर्स ऑफ 5 ये एंगल है। चलो ठीक है। सो अभी हमको उसके अंदर v max निकालना है और v min मिनिमम वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है। तो पहले कौन सा निकालेंगे, पहला कौन सा पूछा है, will there be any lower speed limit? okay, so let us try to find out the lower speed limit. v min क्या फॉर्मूला है उसके लिए पता है सभी को, tan इनवर्स सॉरी v min is रूट ऑफ, ऊपर में अभी देखो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, ऊपर में माइनस साइन और नीचे प्लस साइन कंसिडर करना पड़ता है। याद रखो यहाँ पे सिर्फ म्यू इज इक्वल टू 0.8 दे रखा है, उतना ही चेंज है बस, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब सेम ही है पहले वाला। सो आई विल जस्ट स्टॉप द शेयरिंग एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इट। वी मिन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा सॉरी म्यू माइनस tan थीटा, या tan थीटा माइनस म्यू है, चेक करो सर इट्स tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस म्यू एस और म्यू कैन से अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है मिनिमम वेलोसिटी के लिए, ये हमको यूज करना होगा यहाँ पे। तो वी मीन विल बी एक्चुअली रूट ऑफ, अभी tan थीटा के बदले क्या डालेंगे, डायरेक्ट 5 डाल देंगे, चलेगा? समझा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम दिस। सो अगर हम थीटा का वैल्यू 78 पॉइंट वो जो 78 डिग्री एंड 42 मिनट्स जो लिया था वो भी डाल के हम अगर निकालेंगे तो tan थीटा का वैल्यू 5.00 मतलब 5 ही आएगा। तो ये बन गया 5 माइनस म्यू एस इज गोइंग टू बी 0.8। ओके सर 0.8 यस सर वी हैव टू आल्सो मल्टीप्लाई बाय r and g। हाँ सॉरी this will be whole thing to be multiplied by rg, no doubt. yes, so this will be in bracket actually, and here it will be 1 plus here mu s is again 0.8 and that is multiplied by tan theta which is 5 as it is, and that is multiplied by r which is 72 meter, that is to be multiplied with g which is again 9.8 or we can take it as 10 approximately. yes, so minimum velocity here in this case will actually be equal to root of 5 minus 0.8, how much it is, 4.2, right, divided by 1 plus what is the product, 8 5s are 40, so it becomes 4 actually, right? So 1 plus 4 कितना बन गया, so it is 1 plus 4 मतलब 5। yes, so 4.2 upon 5 into 72 into 9.8। okay, तो अभी ये सब जो है हमको लॉग टेबल से ही करना पड़ेगा जरूर। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू इट।
और ऐसा करो कि इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, इसमें रूट के अंदर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड भी करो, सो दैट दिस 2 into 5 विल बिकम 10, which will make this decimal point shift 1 digit at the right side for this 72. तो उसको हम लिख सकेंगे आराम से v minimum which is going to be equal to root of, here it is 2 into 4.2 is 8.4 into 7.2, समझा कैसे, क्योंकि ये 10 बन गया तो 72 upon 10 becomes 7.2 and that is multiplied with 9.8. तो ये 3 नंबर्स है, इनका तीनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है. That can be done by log tables. Once again, we know that log of 8.4, just check it out, log of 8.4 is going to be 84 का हमको देखना है 0 में, तो 9243 बन रहा है, so you can just write it as 9243, करेक्ट है? yes, नहीं 84 का 0 में 9243, राइट. देन 72 का 0 में देखो, 72 का 0 में 8573, this is 8573, that is also 0 point because decimal point के पहले एक ही डिजिट है, तो उसमें से 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ जाता है, और 9.8 का तो हमको पता होना चाहिए, it is 9912. If we add these numbers here, then we can be able to get this 6 plus 2 8, here it is going to be 8 plus 4 12, and here it is 10 plus 7 17, and here it is 27, and here it will be 2 simply, and then we'll have to divide this whole thing by 2 just because we have to find out the square root. Okay, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको हमको 2 से डिवाइड करना होगा, जिससे वो बन जाएगा 1.3, यहाँ पे 1 बचा 17 हो गया तो 8, फिर यहाँ पे 1 बचा 12 हो गया 6 और 4, करेक्ट है. एंड देन वी हैव टू टेक द एंटीलॉग ऑन दिस, तो इसका एंटीलॉग हमको ढूंढना है, जो एंटीलॉग के टेबल से हमको मिलेगा 38 का देखो 6 में और मीन डिफरेंस 4 में, देखो 38 का 6 में जो 2432 मिल रहा है, चेक करो, और उसी लाइन में मीन डिफरेंस 4 का 2 ऐड करके वो 2434 आएगा, करेक्ट, 2434. सबसे पहले क्या करने का, इस नंबर के अंदर पहले डिजिट के बाद पॉइंट दे देने का, और उस इंटू 10⁻², ये वाला जो नंबर होता है वही यहाँ पे 10⁻² की पावर में डाल देने का, जिससे वो 10⁻1, मतलब ये डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट में शिफ्ट होके वो 24.34 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, जिसको अगर चाहिए तो हम किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट नॉट नेसेसरी. लेट्स चेक द आंसर. ओके, उन्होंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है. लेट अस ट्राई टू डू दैट. सो यू कैन जस्ट डू इट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 18/5. ओके, सो v min is obtained to be actually 24.34, but that is in meter per second. So if you want it in kilometer per hour, then just multiply it by 18/5, just reverse of that, 5/18. So if you just do it here, then अभी इसका भी वापस करना पड़ेगा, करो 2 मिनट में, just do it on calculator. Does it come out to about to be 88? Check. Yes, sir. 87.62. Okay, so approximately it will be 88 kilometer per hour. That is given in the answer. Okay, so our answer is correct. चलो ठीक है, but what about the maximum speed then? तो maximum speed के लिए फिर से हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे फिर से tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 minus mu s into tan theta, and that is to be multiplied with rg. Okay, so that v max becomes actually root of, again here tan theta is going to be 0.5, sorry 5, tan theta will be 5, so 5 plus mu s which is 0.8, which is given here. Okay, and that is to be divided by 1 minus mu s, which is 0.8 again, into tan theta, which is 5, and that is to be multiplied with r, that is 72, and g, that is 9.8. Okay, so just find it out. तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा,
तो यहाँ पे v max जो है तो वो हमको मिल जाएगा इस तरह से रूट ऑफ yes 5 plus 0.8 is 5.8 okay and that is to be divided by what is this 1 minus 4 na okay so 1 minus 4 अब ये तो Sir, sir, it is given here that there is no upper limit as the road is banked for theta greater than 45 degree. करेक्ट क्योंकि अभी ऑलरेडी थीटा इतना बड़ा है और अपर लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अपर लिमिट विल बी वेरी मच लार्ज Sir, it will turn into an complex number. तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि अपर लिमिट के बारे में हमको कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है. देयर विल नॉट बी एनी अपर लिमिट इन दिस केस बिकॉज द एंगल इज वेरी मच लार्ज इन दिस केस. एंगल इतना बड़ा है कि वो एंगल ही सफिशिएंट है उसको मतलब कोई कितना भी बड़ा अगर वेलोसिटी हो तो भी उसको हैंडल करने के लिए वो एंगल उतना ज्यादा है, ठीक है. तो इसलिए अपर लिमिट कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज दिस जब भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसके अंदर मतलब जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है तो मतलब ये जो म्यू एस इंटू tan थीटा ये जो वैल्यू है वो मतलब tan थीटा का वैल्यू अगर 45 से ज्यादा होगा मतलब थीटा का वैल्यू अगर 45 से ज्यादा होगा तो सीधी बात है कि tan थीटा विल बी 1 बराबर है. एंड इन दैट केस म्यू एस जो है म्यू एस और tan थीटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 1 से क्रॉस कर गया तो उस केस में कोई अपर लिमिट उसमें नहीं आएगा, ठीक है. वी आर नॉट टू थिंक अबाउट द अपर लिमिट, ठीक है. वी कैन जस्ट गो बाय एनी स्पीड एज वी वांट इन दिस केस. So that is the answer here. There is no upper limit. Okay. चलो ठीक है. So let us see the next question. Okay, if you want, you just take the screenshot of this. Yes. Okay. Let us see the next question now. Okay, just read the next 16th question here. Okay. Yes, this is a 16th question. Just read it carefully. During a stunt, a cyclist, which is considered to be a particle, is undertaking the horizontal circles inside the cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? If its mass is 50 kilogram and if he increases the speed by 20%, then how much will the frictional force be? Yes. Okay, so देखो यहाँ पे there is a stunt artist which is just revolving inside a well of death like this. So this is the cylinder in which it is performing the circular motion in the horizontal circles like this. Okay, ये सर्कल में वो घूम रहा है जिसका रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है. तो रेडियस इज गिवन टू बी 6.05 मीटर मतलब 6 मीटर ही पकड़ लो उसको अप्रोक्सीमेटली. और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है म्यू एस इट इज गिवन टू बी 0.5 here. Okay, 0.5. This is the radius. Mu s is also given, and also okay, if he increases the speed by 20%, then how much will be the force of friction be? We want to find out the
force of friction if he increases the speed by 20%. ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन है. फाइंड द फ्रिक्शन if speed increases by 20%. okay, first of all we'll have to find out the speed at least, ठीक है नहीं, हमको पहले स्पीड निकालना तो होगा कि कितना मिनिमम स्पीड उसको रखना होगा ताकि वो घूम सके. ठीक है, तो घूमने के लिए कितना मिनिमम स्पीड रखना है कैसे हमको पता चलेगा? what is the condition for that? If suppose this is the particle at this point here, then the centrifugal force acting on it is in the outward direction. You can call it as Fc, but it is just balanced by the normal reaction provided by the surface. And at the same time, weight is acting in a downward direction, that is mg, but it is just balanced by the frictional force acting on it in the upward direction. We can call it as Fs, correct? So we can just construct two equations here. That is, one is Fs is equal to mg. ओके, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया. और दूसरा जो है ये n is equal to fc, ये दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया. बट जैसा कि हम जानते हैं कि Fs जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज ऑलवेज इक्वल टू μs into n, करेक्ट है? सो इफ वी जस्ट पुट दिस वैल्यूज हियर, Fs के बदले अगर हम डाल देंगे mg और इस तरफ n के बदले अगर डाल देंगे fc, जो कि mv स्क्वायर अपॉन r रहने वाला है, तो इसमें से क्या है ना, m कैंसिल हो जाएगा. और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो या rg को अगर इस तरफ लेके जाएंगे और μs को नीचे, तो हमको मिलेगा rg अपॉन μs इज इक्वल टू v स्क्वायर, जिससे हमको मिलता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg अपॉन μs, करेक्ट है? सो वी विल हैव टू फाइंड इट आउट. तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे. So V can be found out to be simply root of Rg upon μs. R is going to be 6.05. Okay. तो यहाँ पे R के बदले हमने डाल दिया 6.05. Yes. G के बदले हम 9.8 यूज कर सकते हैं. और μs जो है तो ऑलरेडी 0.5 दिया हुआ है, तो दिस इज 0.5 here. Okay. So simplify this further and get it as, अब इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इसको हम 60.5 लिख सकते हैं into 9.8 upon 5. So that this 5 gets cancelled with this 60.5, leaving behind 12.1, right? So this is 12.1, and here we get it as 12.1 into. Now it will be better to take this g as 10, just because if we take it as 10, then we can be able to multiply this 12.1 and 10. So as to get root of 121, so that the square root of 121 will be very easy to find out. So square root of 121 becomes actually 11. So here it will be 11 meter per second. That should be the speed with which it should revolve. Okay, so 11 meter per second, this is the minimum speed with which he should revolve in a circle, so that he can just be stick to the surface of the well. Okay, तो इस वेल के साथ वो उसको चिपके रहने के लिए इतना स्पीड जरूरी है. ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड स्पीड जरूरी है. ठीक है, लेकिन अभी हमको यह बताया गया है कि अगर उसने स्पीड 20% से इंक्रीज किया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा. सी, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 20%, दैट मींस व्हाट विल बी द न्यू स्पीड देन? v डैश कितना होगा बताओ? v डैश विल एक्चुअली बी 20% ग्रेटर देन 11, मतलब 11 प्लस 20% ऑफ 11. ओके, तो ये कैसे निकालेंगे? तो वो यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस 20%, मतलब 20/100 टाइम्स ऑफ 11. So that 11 can be taken common and we'll be left with 1 plus 20/100 inside the bracket. So that 1 plus 20/100 मतलब कितना हो गया वो? Actually you can write it as 1 plus 0.2, करेक्ट है? And 1 plus 0.2 मतलब वो 1.2 बन गया. तो 11 into 1.2 कितना बन रहा है? So you can just get it as 11 2s are 22 to carry 11 plus 2 is 13. So it will be 132 मतलब 13.2 meter per second. Yes.
ओके, सो वेलोसिटी, नया वेलोसिटी हमको मिल गया 13.2 मीटर पर सेकेंड. बिकॉज ऑफ दैट, हाउ मच विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? वी कैन फाइंड आउट obviously, because we have the formula for frictional force also, that is Fc is equal to mv square upon r. v dash का स्क्वायर अपॉन r. तो अगर हम सेम वही अगर करेंगे, क्योंकि उसका मास भी तो दिया हुआ है कि नहीं, मास कितना दिया है उसका 50 किलोग्राम, राइट? सो इफ वी जस्ट यूज इट हियर, then we can just be able to get this Fc to be simply 50 into ये 13.2 का स्क्वायर divided by radius, which is 6.05. okay, तो ये वर्कआउट करो फटाफट. तो इट विल बी, यस, 50 का लॉग कितना आता है जानते हैं यहाँ पे, 0.6990, 1.6990. चेक इट आउट. यस, चलो 50 का तो हमने रख दिया लॉग, और 13.2 का भी निकाल के दोबारा रखो, 2 बार यूज करो. तो मतलब 13 का 2 में देखना है, जो कि 1206 है. तो यहाँ पे आ जाएगा 1206, बट 13.2 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा. एंड इफ यू रिपीट इट अगेन, देन इट विल अगेन बी 1.1206, नो डाउट. एंड दैट इज टू बी एड अप टुगेदर. तो इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 12. यहाँ पे आएगा carry 1, so 10, again carry 1, and here it will be 14, carry 1, and here it is going to be 9, and finally 3 here. And इसमें से हमको 6.05 का log हमको माइनस करना है, जो कि 60 का 5 में देखो ठीक से, 60 का 5 में जो 7818 है, okay, 7818. So you can just have this as 7818, and if we just subtract this, then this will be 12, this will be 9, this will be 3, and this will actually be, चलो ठीक है, तो 12 में से 8 गया 4, तो 9 में से 1 गया 8, 3 में से 8 तो नहीं जाता, तो उसको 13 करना पड़ेगा, और इसको 8, सो दैट 13 में से 8 जाके 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 7 जाके 1 बचेगा, और यहाँ पे फिर 3 ही बचेगा. ओके, तो ये हमको मिल रहा है 3.1584, जिसका हमको निकालना होगा एंटी लॉग. इससे हमको मिलेगा Fc. तो 1584 का देखो, 1584, 15 का 8 में और मीन डिफरेंस 4 में जो बन रहा है 1440. ओके, सो 1440, इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट और इनटू 10 रेज़ टू ये वाला 3, जिससे वो बनेगा 1440 एक्चुअली. तो 1440 न्यूटन, this will be actually the centrifugal force acting on this. Okay, so if centrifugal force is this much, then the normal reaction must also be the same, that is centrifugal force. So n is equal to Fc होता है, इसलिए normal reaction कितना आएगा, Fc के बराबर ही आएगा, 1440 न्यूटन. Okay, but now we want to find out the frictional force, right? frictional force हमको ढूंढ के निकालना है. अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, द सेम एज द वेट ऑफ दिस. क्योंकि देखो यहाँ पे can you find out the limiting force of static friction in this case? New limiting force of static friction here, Fs dash, we can say it will be mu s into n, so that mu s is actually 0.5 into n is actually 1440, which is actually going to be 720, correct hai? 720 Newton. But what is the weight of the person? See, weight of the person मतलब mg जो है तो वो कितना है, mass is the 50 kilogram and that is multiplied by gravity which is 10, so it comes out to be almost 500 Newton. Okay, तो देखो applied force here जो इसको स्लाइड करने के लिए ट्राई कर रहा है
वो फोर्स कितना है 500 न्यूटन का है, लेकिन लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो वो तो उससे कई गुना थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 720 न्यूटन के बराबर है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब भी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो उस केस में जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना अप्लाइड फोर्स मतलब जितना भी वेट होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो इन दिस केस द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्सन हियर will actually be same as the weight of the person, that is 500 Newton in this case. Okay. Yes. Okay, we can just see this final answer, that is v minimum जो है वो तो 11 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जो अगर उसने स्पीड बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ाने की वजह से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। और ऐसे केस में जबकि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स which is sliding it the body, तो in that case the frictional force is going to be the same as the applied force only। अगर कोई बॉडी है जिसको सपोज हम खींचना चाहते हैं और उसका जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, तो जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, बिकॉज दैट बॉडी इज गोइंग टू बी एट रेस्ट। तो सो फार एज द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स द सेम एज अप्लाइड फोर्स, रिमेंबर। तो यही कंसेप्ट मैंने एक्चुअली आपको जो बीच में एक फ्रिक्शन के ऊपर एक्चुअली जो लेक्चर लिया था उसके ऊपर, उसके अंदर मैंने यही कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, हाउ द फ्रिक्शन एक्चुअली बिहेव्स। ठीक है, फ्रिक्शन किस तरह से बिहेव करता है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स द सेम एज अप्लाइड फोर्स, बट एज सुन एज द अप्लाइड फोर्स crosses the frictional limiting force of static friction, suddenly the situation becomes kinetic, and in that case the limiting force of kinetic friction comes into play, and in that case the net force acting on the body becomes equal to the difference of the applied force and limiting force of kinetic friction. Okay, that we have already discussed in some lecture previously, so just go through that lecture once again if you have not understood this, or just ask just have the word so that I can ask it explain it again. Meanwhile, just take the screenshot of this. Okay, so is there any doubt? Okay, chalo, ठीक है, so let us stop here and